वो मासी का तेरा दास सर बोले कि तुम मरना करते Good afternoon, everyone. So, today in this training session, we will talk about fostering critical literacy and creative literacy. Actually, whenever we start talking about critical literacy and creative literacy, generally people misunderstand it thinking it to be CCT, critical and creative thinking skills. हम लोग क्रिएटिव एंड क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग स्किल CCT की जो बात करने लगते हैं तो लोग सोचने लगते हैं कि ये वही है, बट इट इज़ लिटिल बिट डिफरेंट. क्रिटिकल लिटरेसी एंड क्रिएटिव लिटरेसी, हाउ टू डेवलप दीज लिटरेसीज अमंग आवर चिल्ड्रन. Critical literacy and creative literacy we can understand if we think like this: digital literacy or computer literacy. So computer literacy is different thing, digital literacy is different thing. Similarly, critical literacy is different from critical thinking. Yes, critical thinking skill may be required for critical literacy, that is true. Similarly, creative skills may be required in our students to have creative literacy. So, if we talk about critical literacy from a philosophical perspective, it is a belief
of interpreting literature. Means if you think about critical literacy is more related to literature, but literature is in every subject. In every subject there is some literature part, some theory part. Even in maths we have theory part. So if we can understand that theory part, if we can analyze that theory part critically, then we will have better understanding of the content. And for competency based teaching or activity centered teaching learning process, we need to have deeper learning in the students. For deeper learning, the students should be able to understand the content critically, analyze the content critically. तो जब हम क्रिटिकल लिटरेसी की बात करते हैं तो ये समझना ज़रूरी होता है कि जो लिटरेचर है, केवल ये नहीं कि उसका वर्ड्स को हमने पढ़ लिया, उसका मीनिंग निकाल लिया टेक्स्ट का और हो गया कंप्लीट. Critical literacy believes that literature, if you want to interpret any literature, that is more than decoding the words or text. टेक्स्ट का जो वर्ड्स है उसको जो डिकोड करते हैं, उसका जो मीनिंग निकाल लेते हैं, मीनिंग निकालने से ज़्यादा बड़ा चीज़ है. मीन्स अभी निपुण भारत की बात हो रही है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, है ना. So we have to understand the text, understand the literature, understand reading with understanding. The children should be able to read with understanding. For that understanding, the children is required to have critical literacy. क्योंकि केवल सिंपल वर्ड्स का मीनिंग या सेंटेंस का मीनिंग जान लेना अंडरस्टैंडिंग को डेवलप नहीं कर सकता. Secondly, it is necessary to understand that language is a social construct and that it is never neutral. It is used to inform, entertain, persuade and manipulate. So language serves many purposes, and language doesn't have simple meaning. It is always understood in social background terms. किस ढंग से बोला जा रहा है वो भी मायने रखता है, किस कॉन्टेक्स्ट में बोला जा रहा है कोई चीज़ वो भी मायने रखता है. इसीलिए क्रिटिकल लिटरेसी हर किसी के पास होना ज़रूरी है ताकि हम मीनिंग को समझ सकें. एवरी लैंग्वेज हैज़ हिडन मीनिंग. बोलने का ढंग में जो एक हिडन मीनिंग होता है, इट इज़ नॉट सिंपल, सो सिंपल. मेनी अ टाइम्स कोई कुछ बोलते हैं और उसका दूसरा मीनिंग समझा जाता है. इसलिए समझाता है क्योंकि समझने वाले के पास क्रिटिकल लिटरेसी है. अगर सिंपल वर्ड हम देख लेते तो हम कभी भी किसी के द्वारा जो हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है उसको समझ नहीं पाते. सिंपल वर्ड में मजाक उड़ाया जा रहा है लेकिन हम समझ जाते हैं क्योंकि हमारे पास क्रिटिकल लिटरेसी है. दैट क्रिटिकल लिटरेसी शुड बी डेवलप्ड अमंग चिल्ड्रन ऑल्सो. सो क्रिटिकल लिटरेसी की बात इसलिए हो रही है बिकॉज लैंग्वेज इज मोर देन डिकोडिंग द वर्ड्स ऑफ ए टेक्स्ट. मतलब सिंपल अगर आप केवल वर्ड्स का मीनिंग निकाल लेंगे then you cannot have better understanding, you cannot have good understanding of the language. लैंग्वेज को पूरी तरह से अच्छी तरह से समझने के लिए आपको क्रिटिकल लिटरेसी होनी है. नहीं तो कोई अगर आपका मौकरी कर रहा है बहुत अच्छे, अगर कोई बहुत चीनी में घोल करके शब्द बोल रहा है, आप अगर शब्दों का मीनिंग सिर्फ देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो कोई चापलूसी हो रही है. उसी तरह से कोई आपका मौकरी कर रहा है लेकिन बहुत अच्छे वर्ड्स में मौकरी आपका कर रहा है, आपको समझ में नहीं आएगा इफ़ यू डू नॉट हैव क्रिटिकल लिटरेसी. तो लेकिन हम समझ जाते हैं. कोई हमारा अगर हमारा मीठे शब्दों में मजाक उड़ा रहा हो तो हम समझ जाते हैं बिकॉज वी हैव क्रिटिकल लिटरेसी. तो हमारे पास जो क्रिटिकल लिटरेसी है वह द सेम लिटरेसी वी शुड ट्रांसफर टू आवर स्टूडेंट्स सो दैट स्टूडेंट्स बिकम a well qualified person suitable for the society and can run the society in their future. So we need to impart critical literacy also while we are teaching. जब हम पढ़ा रहे हैं तो हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है कि हम बच्चे में क्रिटिकल लिटरेसी को डेवलप करें. नॉलेज इज नेवर न्यूट्रल. लैंग्वेज इज नेवर न्यूट्रल. जो बोलने वाले होते हैं उनका बायसनेस उसमें आ जाता है.
उनका जो अपना वैल्यूज है वो आ जाता है, उनका जो अपना सोच है, थॉट, उस लैंग्वेज में होता है। तो सुनने वाले को ये सब, अगर किसी तरह का बायसनेस है उसको हटा करके समझना पड़ेगा व्हाट इज एक्चुअली बीइंग टोल्ड, एंड दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ क्रिटिकल लिटरेसी। तो नॉलेज इज नेवर न्यूट्रल, नॉलेज कहते हैं नॉलेज भी न्यूट्रल नहीं है। हम वही ज्ञान अर्जित कर पाते हैं जो हम जिसमें हम बिलीव करते हैं। इट नेवर एग्जिस्ट एन इम्पेरिस्ट ऑब्जेक्टिव रिलेशनशिप टू द रियल, मतलब रियल सिचुएशन जो है वो हम एक्चुअल में अपने नॉलेज से वो नहीं कर पाते जब तक कि हम एक अनबायस्ड वे में सोच ना करें, थॉट ना लाएं। Knowledge is power and the circulation of knowledge is part of the social distribution of power. Means if you are sharing knowledge, you are sharing power. और जो जिस थॉट से बिलोंग करता है, जिस स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करता है, वो अपने थॉट को, अपने नॉलेज को फैलाता है। यू सी टुडे इन द वर्ल्ड देयर आर सो मेनी स्कूल्स ऑफ नॉलेज, यू कैन से इवन एवरी रिलीजन इज ए स्कूल ऑफ नॉलेज। हर वो अपना नॉलेज इम्पार्ट कर रहा है अपने फॉलोअर्स को। आप कोई अगर केवीएस की परंपरा, जवाहर नवोदय विद्यालय की परंपरा, प्राइवेट स्कूल के जो स्टूडेंट हैं, सबके पास अपना अलग एक वैल्यू सिस्टम डेवलप हो रहा है बिकॉज ऑफ देयर लैंग्वेज, देयर नॉलेज इम्पार्टिंग। वो केवीएस अलग तरह का नॉलेज एडॉप्ट दे रही है, देयर जेएनवी थोड़ा अलग है, कंटेंट सेम है, कंटेंट इज द सेम, कंटेंट ऑलमोस्ट मोड ऑफ डिलीवरी ऑफ कंटेंट इज ऑलमोस्ट सेम, नेवरदलेस students are developing in different ways, different types of professionals are growing up in the society. That is because of critical literacy also. For what level we are able to impart critical literacy to our students, है ना। हम adolescent learner के से बहुत हद तक 6 to 12 करते हैं, और ये जो 6 to 12 का एज है वो ज़्यादा, ऐसा नहीं कि प्राइमरी के बच्चों को नहीं, प्राइमरी बच्चे भी क्रिटिकली थिंक करते हैं। क्रिटिकली थिंक करने का मतलब, क्रिटिकल लिटरेसी होने का मतलब है कि यू आर एबल टू मेक ए जजमेंट, यू आर एबल टू मेक चॉइसेस, और बहुत ऑब्जेक्टिव चॉइसेस, बहुत अच्छे से आप अपने बेनिफिट के लिए अपना चॉइस कर सकते हैं। मतलब कि हमको ये सब्जेक्ट पढ़ना है या सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, ये होमवर्क अभी करना है, ये होमवर्क अभी नहीं करना है, ये तभी कर सकते हैं जब क्रिटिकल लिटरेसी उनके पास है। व्हेन फिलॉसफी जो है, बेसिक प्रिंसिपल दैट वी वांट टू लर्न हाउ लैंग्वेज वर्क्स इन ऑर्डर टू बी ए मोर स्किल्ड यूजर ऑफ लैंग्वेज इन टर्म्स ऑफ कंप्रीहेंडिंग, कंपोजिंग एंड एड्रेसिंग सोशल इक्विटीज़। सोसाइटी में बहुत तरह का अंतर है, भेदभाव है, बहुत तरह का एक पैटर्न है, अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग तरह का सोशल कंस्ट्रक्ट है। उसमें हम कैसे अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं, उसमें हम अपने लैंग्वेज का कैसे अच्छे से यूज कर सकते हैं, और सामने से जो लैंग्वेज आ रही है उसको हम अच्छी तरह से कैसे समझ सकते हैं, यह है क्रिटिकल लिटरेसी। सो क्रिटिकल लिटरेसी रेफर्स टू स्टूडेंट्स क्रिटिकली एनालाइजिंग एंड इवेल्युएटिंग द मीनिंग ऑफ टेक्स्ट as it relates to issues of equity, power and social justice, to inform a critical stance, response or action। मतलब कि वो इवेलुएट कर सके, एनालाइज कर सके जो सामने से टेक्स्ट आ रहा है रिटन फॉर्म में या वर्बल फॉर्म में, जो लैंग्वेज आ रहा है उस लैंग्वेज को वो अच्छे से समझ सके, एनालाइज कर सकें, ताकि वो समाज का जो है पावर डिस्ट्रीब्यूशन, इक्विटी डिस्ट्रीब्यूशन, सोशल जस्टिस के नॉर्म्स को उसको देखकर समझकर उसके अनुसार से प्रॉपर्ली रेस्पॉन्ड कर सके या प्रॉपर्ली एक्शन ले सकें। सो क्रिटिकल लिटरेसी इज इम्पॉर्टेंट फॉर दैट पर्पस, एंड giving careful consideration or thought, being involved in disciplined intellectual criticism, combining balanced judgment with knowledge of context, questioning personal assumptions, values and beliefs, taking initiatives and using intuition, utilizing journaling as a means of encouraging learning, thinking and the development of beliefs। होता क्या है, जिस चीज़ में हम बिलीव करते हैं वही चीज़ एक्सेप्ट करते रहते हैं, वही नॉलेज एक्सेप्ट करते रहते हैं। सामने से जब कुछ आ रहा है तो हम उसको सीधे एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर देते हैं, जो भी नॉलेज हमको मिल रहा है उसको एक्सेप्ट रिजेक्ट कर। लेकिन अगर इफ़ ए पर्सन हैज़ क्रिटिकल लिटरेसी, वो उसको क्वेश्चन करेंगे, वो अपने बिलीव को, अपने वैल्यू को, अपने अजम्पशन को भी क्वेश्चन करेंगे, और आने वाले पावर, आने वाली लैंग्वेज को, आने वाले
जो टेक्स्ट है, आने वाला जो नॉलेज है, उसको वो इवैल्यूएट करेंगे और देखेंगे कि अगर हमारा बिलीफ खराब है, गलत है, तो फिर वो बिलीफ को, नए बिलीफ को भी डेवलप करेंगे अपने अंदर, नए वैल्यूज़ को अपने अंदर डेवलप कर पाएंगे अगर क्रिटिकली लिटरेट हैं। सो बिकमिंग क्रिटिकली लिटरेट ऑफर्स अपॉर्चुनिटीज़ फॉर बॉयज एंड एज वेल एज फॉर गर्ल्स। मतलब क्या है कि अगर क्रिटिकली लिटरेट हम अपने बच्चों को बनाते हैं तो उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होगी। वो अपने जो बाउंड्रीज़ हैं, अपने जो अपना जो दायरा है, जो फैमिली का दायरा, सोसाइटी का दायरा, उससे बाहर निकल के वो ज़्यादा डेवलप कर सकेंगे, ज़्यादा कुछ समझ सकेंगे, सब्जेक्ट्स को, सोशल लैंग्वेज प्रैक्टिसेस को, ट्रेडिशंस को, और नए ट्रेडिशंस और नए चीज़ों को भी बहुत जजमेंट के साथ अच्छे से समझ कर, इवेलुएट करके अपना सकेंगे। So critical literacy is important for our children, for our students. We must have to develop. So critically literacy can refer to the capacity to speak back to written test. मतलब कोई लेटर आया, उसके बदले में वो बोल सकें, लिख सकें. Considering questions such as who wrote the text, for whom and in what context, whose interest might the text serve, whose experiences, meanings and perspectives are privileged. Read the world. मीन्स क्रिटिकल लिटरेसी हेल्प्स ए पर्सन। कोई भी आपके पास लेटर आता है, कोई भी ईमेल आता है, कोई भी आपके पास बुक आता है सामने, आप उसको जो है क्वेश्चन कर सकते हैं, वहाँ पर किसने लिखा है, कौन है ऑथर, किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है। अगर हम कॉन्टेक्स्ट समझते हैं तो हम ज़्यादा अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और ये जो लिखा गया है ये किसके लिए बेनिफिशियल है, मेरे लिए बेनिफिशियल है या नहीं, हम ये समझ सकते हैं। तो हम पर्सपेक्टिव्स ऑल्सो वी कैन एनालाइज, वी कैन एनालाइज मीनिंग एंड वी कैन डेवलप न्यू मीनिंग्स एंड वी कैन देन रेस्पॉन्ड करेक्टली। जो हमको नॉलेज मिल रहा है उसके अगेंस्ट में जो रेस्पॉन्ड करना है, जो जवाब देना है, जो एक्शन करना है, वो हम आसानी से और साइंटिफिकली कर पाएंगे अगर क्रिटिकली लिटरेट हैं हम तो। सो वी नीड टू टीच स्टूडेंट्स वैल्यू इंटरप्रिटेशन। The idea that frames trump facts means what main facts, what are the main facts। जो भी कुछ हम उन स्टूडेंट को सामने बोला जा रहा है, दिया जा रहा है, मान लिया एक वीडियो ही दिखाया जा रहा है, वीडियो में भी आइडियाज़ हैं, नॉलेज है, वो नॉलेज जो आ रहा है वो एक्सेप्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मेन फैक्ट्स उसमें क्या कहा जा रहा है, कौन सा वैल्यू उसमें इनकॉर्पोरेटेड है। बी एन एजेंट ऑफ टेक्स्ट नॉट ए विक्टिम ऑफ इट। मतलब कि किसी ने कोई व्हाट्सएप में कोई सर्कुलेट किया कोई मैसेज और हम उस समझ गए कि हाँ वो सही है, व्हाट्सएप में आया है। और कई बहुत सारे लोग जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं वो व्हाट्सएप में आए हुए मैसेज को तुरंत एक्सेप्ट करते हैं और उसके अनुसार से पूरा खबर फैलाते हैं, ये चीज़ हो रहा है, ये सही है, इसे हो रहा है, वैसे हो रहा है ना। अब एक घोड़ा उड़ रहा था, एक जो फ्लाइंग जो है उड़न तस्तरी जो है ना यहाँ देखी गई मधुपुर में। अब ऐसा कोई व्हाट्सएप में मैसेज आ गया, उसको उसने पूरा वायरल कर दिया, उसने सबको फैला दिया और सबको फैला दिया। क्रिटिकली लिटरेट पर्सन ऐसा नहीं करेगा, है ना। मतलब हम किसी चीज़ का विक्टिम नहीं होंगे, हम उसका शिकार नहीं होंगे, बल्कि हम उसके एजेंट होंगे। हम उसको एनालाइज कर लेंगे, वो किसके लिए बेनिफिशियल है उसको हम पास करेंगे, जिसके लिए बेनिफिशियल नहीं पास करेंगे। मेरे लिए बेनिफिशियल है हम एक्सेप्ट करेंगे, नहीं बेनिफिशियल है नहीं एक्सेप्ट करेंगे। सो दैट इज क्रिटिकल लिटरेसी। वी हैव टू इंगेज स्टूडेंट्स इन दिस क्रिटिकल लिटरेसी। चिल्ड्रन शुड बी एबल टू इंटेरोगेट, क्वेश्चन कर सकते हैं हर चीज़ को, अपना बिलीफ को, दूसरे का बिलीफ को, जो लेटर या जो मैसेज है उसके बिलीफ में जो वैल्यू आया उसको है ना, उसको वो क्रिटिकली एनालाइज कर सकें, उसको क्वेश्चन कर सकें। कोई भी चीज़ लिख कर मतलब कि ऐसा जो पुराने समय से चला आ रहा है उसको एक्सेप्ट ऐसे ना कर लें। दैट इज़ क्रिटिकल लिटरेसी। तो क्रिटिकल लिटरेसी हर सब्जेक्ट के लिए मीन्स क्रिटिकल लिटरेसी कैन बी अप्लाइड अक्रॉस सब्जेक्ट एरियाज। मोड्स ऑफ एक्सप्रेशन मतलब कोई गुस्से से बोल रहा है, कोई धीरे से बोल रहा है, कोई अच्छे से बोल रहा है, कोई हंस कर बोल रहा है, हर तरह का जो लैंग्वेज है उस तरह पर उस पर किया जाता है। टेक्स्ट एंड न्यू टेक्नोलॉजी इज इवन। तो बाय क्रिटिकल लिटरेसी वी इनकलकेट क्वेश्चनिंग हैबिट एंड थिंकिंग स्किल, मतलब रिफ्लेक्शन। कोई भी चीज़ अगर काम कर चुके अगर कोई बच्चे को बड़े, तो फिर उस पर सोचते हैं कि काम जो हमने किया वो ठीक किया या नहीं। यह भी क्रिटिकल लिटरेसी के अंतर्गत आता है, मतलब रिफ्लेक्शन। देन एक्सप्रेस,
तब उसको एक्सप्रेस करते हैं, उसको जो है हम अपने अनुसार फिर उसको आगे बढ़ाने का या रिजेक्ट करने का काम करते हैं। सो क्रिटिकल लिटरेसी जो है हमारे बच्चों को कॉलेज के लिए और करियर के लिए तैयार करेगा, उनको ज़्यादा इंडिपेंडेंट बनाएगा एंड कंटेंट नॉलेज में स्ट्रॉन्ग बनाएगा। क्योंकि जब बच्चे एनालाइज करेंगे आपके नॉलेज को, आप जो नॉलेज दिए, आप जो प्रेजेंट किए, आप जो बुक उनको पढ़ने बोले, उसको बुक को पढ़ करके जब वो उसको एनालाइज करेंगे और उसको रिफ्लेक्ट करेंगे, सोचेंगे, देन दे विल मेक कॉन्सेप्ट मैप, और ओल्ड कॉन्सेप्ट मैप कॉन्सेप्ट से नए कॉन्सेप्ट को जोड़ेंगे, लिंकिंग ऑफ कॉन्सेप्ट विल टेक प्लेस। और इसके लिए ज़रूरी है कि बच्चे का क्रिटिकली लिटरेट होना। क्रिटिकली लिटरेट होने पर बच्चे जो हैं वो कंटेंट नॉलेज में स्ट्रॉन्ग हो पाएंगे। दे विल बी एबल टू रेस्पॉन्ड टू द वेरिंग डिमांड्स ऑफ ऑडियंस, टास्क, पर्पस एंड डिसिप्लिन। आप देखिए, आपको जाते हैं क्लासरूम में, बच्चा बोलता है खेल सर गेम्स दीजिए, गेम्स दीजिए, आपको सिलेबस पूरा करना है, आप गेम्स नहीं देते हैं, आप बच्चे को किस तरह से समझाते हैं, और समझाने के बाद बच्चे तैयार हो जाते हैं पढ़ने के लिए। दिस इज योर क्रिटिकल लिटरेसी स्किल, क्रिटिकल लिटरेसी। तो अलग अलग डिसिप्लिन का प्रॉब्लम हो, कुछ पर्पस का प्रॉब्लम हो, कुछ उद्देश्य हो, कुछ काम हो, उसके लिए हम कैसे तैयार होते हैं, स्ट्रांगली तैयार होते हैं। दैट स्ट्रेंथ इज गिवन बाय क्रिटिकल लिटरेसी। हम लोग समझ सकते हैं किसी चीज़ को और क्रिटिकली एनालाइज कर सकते हैं, उसका प्रॉस कॉन्स, उसका पॉजिटिव निगेटिव चीज़ बता सकते हैं। ये किसी भी चीज़ का पॉजिटिव निगेटिव हम दोनों पक्ष से डिबेट कर सकते हैं क्रिटिकल लिटरेसी होने से। देन वैल्यू एंड एविडेंस, हम वैल्यू पता चलता है कि इसमें क्या वैल्यू है। टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं स्ट्रेटेजिकली, मतलब कौन सा सूटेबल टेक्नोलॉजी, कौन सा टेक्नोलॉजी किस कंटेंट के लिए सूटेबल होगा, हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि हम एनालाइज कर पाते हैं। मतलब कि कोई भी वीडियो यूट्यूब पर मिल गया और हम उसको शेयर कर दिए बच्चों को, ये नहीं होना चाहिए। ये नहीं होता भी नहीं है, क्योंकि हम लोग पहले 10 वीडियो देखते हैं तो एक वीडियो शेयर करते हैं किसी पढ़ाई के बच्चों के लिए, बिकॉज वी आर एनालाइजिंग इट, बिकॉज वी आर क्रिटिकली लिटरेट, वी टीचर्स आर क्रिटिकली लिटरेट। दैट सेम क्रिटिकल लिटरेसी इज टू बी इम्पार्टेड, ट्रांसफर्ड टू द स्टूडेंट्स ऑल्सो, ताकि स्टूडेंट भी क्रिटिकली लिटरेट हों और भविष्य के लिए तैयार हो सकें। वो कल्चर को, इससे कल्चर समझने में आसानी होती है और उसका पर्सपेक्टिव समझने में भी आसानी होती है। कल्चर में कुछ ऐसा आ रहा हो जो कि सूटेबल ना हो तो उसको रिजेक्ट करने में भी वो रिजेक्ट कर सकते हैं। देन क्रिटिकल लिटरेसी डेवलप करने के लिए एक बहुत बड़ा चीज़ है रीडिंग, सेकेंड चीज़ राइटिंग एंड देन स्पोकन ऑल्सो। तो रीडिंग में भी दो तरह के कॉन्सेप्ट आते हैं। एक है डायरेक्टेड रीडिंग एक्टिविटी, टीचर सेंटर्ड। टीचर डायरेक्ट स्टूडेंट्स, देखिए फन करने के लिए, पढ़ने के लिए कुछ चेंज करना है बताइए, वैसे भी आप नहीं है, ठीक है। सो फर्स्ट डायरेक्टेड रीडिंग एक्टिविटी इज टीचर सेंटर्ड। अब क्या है ना, जनरली अभी तक जो हम लोग पढ़ाई लिखाई करवा रहे हैं, जिस तरह से चला रहे हैं हम लोग, टीचर सेंटर्ड क्लासरूम्स हो रहे हैं। जनरली बहुत सारे ऐसे होते हैं डिस्कशन टाइप और ऑब्जर्वेशन कम डिस्कशन टाइप, डेमोन्स्ट्रेशन कम डिस्कशन टाइप क्लासरूम्स हम लोग आजकल चलाते हैं अभी तक में मैक्सिमम। फिर अभी टेक्नोलॉजी आ रही है तो देन स्टूडेंट्स आर बिकमिंग मोर एक्टिव, देन वी आर अप्लाइंग ब्लेंडेड लर्निंग आल्सो। हम लोग पढ़ा रहे हैं, फिर उसका कुछ यूट्यूब वीडियो भेज रहे हैं, कुछ ई कंटेंट भेज रहे हैं व्हाट्सएप में, गूगल क्लासरूम के थ्रू। बट जो अभी NEP लागू होने से पहले की सिचुएशन थे, मैक्सिमम टीचर सेंटर था। क्या करते टीचर्स डायरेक्ट्स स्टूडेंट्स ऑन व्हाट टू लुक फॉर एंड क्वेश्चंस टू आंसर एज दे रीड। मतलब कि हम क्या करते हैं कि हम जो पढ़ने देते हैं या हम जो पढ़ाते हैं, हम कोई सिलेबस चैप्टर शुरू करते हैं, पढ़ाते हैं, बच्चे को पढ़ने बोलते हैं, फिर उनको पता होता है कि टीचर बताते हैं कि ये क्वेश्चन का आपको आंसर करना है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करना है, फिर एक्सरसाइज का क्वेश्चन का आंसर, मतलब डायरेक्टेड, टीचर्स डायरेक्टेड है, बुक डायरेक्टेड है ये एक्टिविटी। लेस फोकस ऑन क्रिटिकल थिंकिंग एंड मोर ऑन अचीविंग द पर्पस द टीचर सेट्स। अब इसमें क्या है कि टीचर का ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है कि ये पढ़ाना है, बच्चा पढ़ा रहे हैं एसिड बेसिस, द लर्नर विल बी एबल टू डिफाइन एसिड एंड बेसिस। तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ मैं बच्चे को इसी तरह से डायरेक्ट कर रहा हूँ कि वो डेफिनेशन को उसको पता चल जाए, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स मैं डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा देता हूँ ब्लू लिटमस रेड लिटमस से, और फिर ये कोशिश कर रहती है मेरी कि बच्चा जो है डिफाइन कर सके एसिड बेसिस को।
but there is no critical thinking on the part of students. Students are totally dependent on teacher. टीचर जैसे गाइड कर रहे हैं वैसे वो बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन से कर लिया, सिलेबस चैप्टर पूरा। उसके बाद आगे उनको अगर प्रोजेक्ट दे दिए तो प्रोजेक्ट क्या करेंगे, वो इंटरनेट से कॉपी करके ले आए, पूरा छाप दिए, लिख दिए, या कहीं से कॉपी से करके लिख दिए। अपना थिंकिंग करके नहीं लिख पाएंगे, बिकॉज इट इज टीचर सेंटर्ड, फुल्ली डायरेक्टेड बाय टीचर। टीचर प्रोवाइड्स बैकग्राउंड नॉलेज एज ए प्री रीडिंग एक्टिविटी। मतलब क्या कि जो चीज़ पढ़ रहे हैं बच्चे, उसके पहले का क्या जरूरत है, उसका प्रीवियस नॉलेज भी टीचर ही देते हैं उस वक्त ही। देन if you see directed learning, teaching, thinking activity, learner centered, here what happens, students predict, hypothesize, then confirm or disconfirm with evidence. स्टूडेंट ज़्यादा एक्टिव हैं, वो जो है कोई स्टोरी है तो उसका इम्प्रेशन, उसका आगे क्या होगा, ये सब बता सकते हैं वो। द टीचर फोकस इज ऑन एक्सपैंडिंग स्टूडेंट्स एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली। टीचर कुछ ऐसा क्वेश्चन देते हैं, कुछ इस तरह से गाइड करते हैं, मतलब टीचर इज ए फैसिलिटेटर। टीचर्स मेक स्टूडेंट्स थिंक क्रिटिकली। टीचर जो है प्रोजेक्ट दे देते हैं, कीजिए, और उसको बता देते हैं कि ये बुक ऐसा बुक आपको लाइब्रेरी में मिल सकता है, ये इस जगह पर आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, और आप इस तरह से आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स डू एवरीथिंग, वही सोचते हैं, वही करते हैं, वही प्लान बनाते हैं, उस प्लान को जस्ट टीचर गाइड करके थोड़ा अप्रूव करते हैं, और टीचर उनको हल्का गाइड करते रहते हैं। फिर बाद में बच्चे जो हैं जब प्रोजेक्ट तैयार कर लेते हैं, वो प्रेजेंट करते हैं खुद से। जब प्रेजेंट करते हैं और दूसरे बच्चे उनसे क्वेश्चन पूछेंगे, फिर टीचर क्वेश्चन पूछते हैं और बच्चों से ही आंसर निकलवाते हैं उस टॉपिक का। या फ्लिप्ड क्लासरूम का सिचुएशन बनाते हैं, टीचर बोलते हैं घर से ये चैप्टर पढ़ के आना है और आपको यहाँ पर जो है हम इसको डिस्कस करेंगे। बच्चे डिस्कस करना शुरू करते हैं, बच्चे केवल टीचर मॉनिटरिंग या गाइड या फैसिलिटेटर का काम करते हैं। भाई हैंड लेके जाएगा ना, ठीक है, हम रिसीव करा लें इससे। सो आपको समझ में आ रहा होगा कि टीचर सेंटर्ड एंड लर्नर सेंटर्ड। और हम जो बात कर रहे हैं एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग, competency based teaching, where a learner is at the center of the classroom, and earlier version where teacher was in the center, teacher was the main doer, now students are going to be main doer। but critical literacy दोनों तरह से बच्चे में इम्पार्ट की जा सकती है ना, दोनों ही समय में टीचर कैन इम्पार्ट क्रिटिकल लिटरेसी। Now secondary student need to become critical consumers, producers of text, consumers as well as producers, consumers and producers। मतलब टेक्स्ट से मतलब यहाँ पर वो जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, जो बुक बनाते हैं, जो चीज़ जो नया, मान लीजिए कि कुछ प्रॉब्लम उन्होंने सॉल्व किया मैथ्स में, फिर नया एक प्रॉब्लम वो खुद बना करके प्रेजेंट करते हैं, या फिर नया तरह का जो प्रॉब्लम आता है उसको वो सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन में बोला था, ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज होना चाहिए, न्यू सिचुएशन, रियल लाइफ सिचुएशंस। तो यहाँ पर वही बोल रहा जा रहा है कि सेकेंडरी स्टूडेंट्स की ज़रूरत है कि वो जो हैं, जो नॉलेज है, दैट दे शुड बी एबल टू अप्लाई दैट नॉलेज इन रियल लाइफ सिचुएशंस और ट्रांसफर दैट नॉलेज इन न्यू सिचुएशंस, एंड दैट कैन बी डन थ्रू क्रिटिकल लिटरेसी। देन मेक इन्फॉर्म्ड लाइफ चॉइसेस। मतलब कि क्या है ना, जनरली बच्चे क्या हैं, वो बाद में ब्लेम करेंगे। अब खुद मान लीजिए कि साइंस में कम पढ़े, मैथ्स में ज़्यादा पढ़े, मैथ्स में ज़्यादा नंबर ले आए, साइंस में कम ले आए, बाद में बोलेंगे कि ब्लेम करने के लिए कोई चीज़ खोज लेंगे कि ब्लेम उस पर डाल देंगे कि नहीं, इसके कारण हमारा साइंस में कम मार्क्स आया। सो मेकिंग इन्फॉर्म्ड लाइफ चॉइसेस मीन्स वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर डिसीजंस, नोबडी एल्स इज रिस्पॉन्सिबल। हम अपने काम, अपने अचीवमेंट, अपने फेल्योर, अपने सक्सेसेस के लिए किसी दूसरे को क्रेडिट नहीं दे सकते और ना ब्लेम कर सकते हैं। मेकिंग इन्फॉर्म्ड लाइफ चॉइसेस मीन्स दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर डूइंग, फॉर आवर डिसीजंस। एंड टुडे वर्ल्ड इज चेंजिंग, टुडे वर्ल्ड इज बिकमिंग मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स, एंड सो टू मेक इन्फॉर्म्ड लाइफ चॉइसेस स्टूडेंट्स मस्ट हैव क्रिटिकल लिटरेसी।
Then critical literacy further means to read with text. We have to understand the positions on offer, follow and engage with writers or arguments. मतलब राइटर्स का यहाँ मतलब कि बाहर से जिससे भी हम मिल रहे हैं, जो भी बातें हो रही हैं, जो भी ईमेल आ रहे हैं, जो भी रिटन टेक्स्ट आ रहा है, जो भी वर्बल टेक्स्ट आ रहा है, हम समझ सकें कि वहाँ से क्या ऑफर हो रहा है, हमारा क्या जवाब होना चाहिए, हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए इस पर, हमारा क्या स्टैंड पॉइंट होना चाहिए, हम इस आइडिया को हमको एक्सेप्ट करना चाहिए या कि रिजेक्ट कर देना चाहिए या अवेयर्स में रखना चाहिए। तो ये सब कुछ क्रिटिकली, अभी बच्चे जो हैं टीचर्स पढ़ाते रहते हैं कोई चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़, बच्चे ध्यान नहीं देते बिकॉज दे आर नॉट क्रिटिकली लिटरेट। अगर क्रिटिकली लिटरेट होते तो वो बच्चे समझ जाते कि टीचर जो अभी पढ़ा रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है और हमें ध्यान देना चाहिए, भले ही कितना भी मन कर रहा हो खेलने का, लेकिन हमें पढ़ाई पर ध्यान देना है। तो क्रिटिकल लिटरेसी, रीडिंग विद टेक्स्ट इज ईजी टू डू इफ वी रेजोनेट विद द राइटर एंड रियली हार्ड टू डू इफ द राइटिंग थ्रेटन्स आवर वर्ल्ड व्यू, द प्रिंसिपल्स वी होल्ड डियर और द वैल्यूज वी लिव बाय। अभी यहाँ पर क्रिटिकल लिटरेसी, जब भी कभी हम क्रिटिकल लिटरेसी डेवलप करना चाहते हैं किसी में, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं या किसी को सुनते हैं, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, ये ऑल दीज आर द टेक्निक्स थ्रू विच वी कैन डेवलप क्रिटिकल लिटरेसी। मान लीजिए कि हम किसी का कोई टेक्स्ट को रीड कर रहे हैं या किसी का बात सुन रहे हैं, कोई ईमेल पढ़ रहे हैं, अगर हमारा अंडरस्टैंडिंग जस्ट राइटर जो लिखने वाला है, बोलने वाला है, उसके लेवल पर अंडरस्टैंडिंग में हो तो हम बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन फिर वही बात होती है, अगर मेरे पास कोई ऐसा वैल्यू पॉइंट है, कोई ऐसा मेरा थॉट है, कोई ऐसा मेरा दिमाग में कुछ ऐसा भरा हुआ है जिससे कि लगता है कि वो जो बोल रहा है वो मतलब कि मुझे एकदम मेरे एक्सेप्टेबल नहीं है, मेरे को क्वेश्चन कर रहा है वो चीज़, तो फिर हम कान बंद कर लेते हैं, दिमाग का कान बंद कर लेते हैं। भले सुनते रहते हैं लेकिन हम दिमाग से नहीं सुनते हैं उस चीज़ को, क्योंकि वो हमारे प्रिंसिपल्स, जो हमारा जो प्रिंसिपल है, जो वैल्यू है, हमारा जो सिद्धांत है, उस पर चोट करने का कोशिश कर रहा है। वो सिद्धांत हमको बहुत प्रिय है, बट ए क्रिटिकली लिटरेट पर्सन जो होता है वो अपने सिद्धांत को साइड रख करके अनबायस्ड व्यू में जो सामने आ रही है बात, उसको वो जज कर सकते हैं। और जब जज करते हैं, देखते हैं कि हमारे वैल्यू, हमारे प्रिंसिपल, हमारे सिद्धांत से यह अच्छा सिद्धांत है और हमारा सिद्धांत फॉल्टी है, तो वो अपने सिद्धांत को रिप्लेस करने या उसमें जोड़ने में वो तैयार रहते हैं। दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए क्रिटिकली लिटरेट पर्सन। मतलब कि कोई एक सिद्धांत, कोई धर्म को, ये कहें कोई एक बात को, कोई एक आइडिया को एकदम क्लिंग करके पकड़ के वो ज़रूरी नहीं है कि वो रखें। वो हर चीज़ को क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, वो हर चीज़ को एनालाइज कर सकते हैं, हर चीज़ के बारे में प्रॉस एंड कॉन्स, पॉजिटिव निगेटिव बात करके ध्यान से समझ के वो डिसीजन लेंगे। इन्फॉर्म्ड चॉइसेस, एंड फॉर एवरी चॉइस, फॉर एवरी डिसीजन, एक जो मल्टीपल चॉइस में हम कोई सेलेक्ट करते हैं चॉइस, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल वो खुद होंगे, एक क्रिटिकली लिटरेट पर्सन। देन जो क्रिटिकली लिटरेट पर्सन होते हैं वो हर चीज़ को क्वेश्चन करते हैं, डीपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं अपने में, दूसरे में, जो अपने साथ चलने वाले हैं उनके लिए भी। क्लेम और काउंटर क्लेम दोनों पर ध्यान देते हैं, मतलब मैंने कहा पॉजिटिव निगेटिव दोनों पर काम करते हैं। जो रीडिंग के थ्रू हम जब कोशिश करते हैं डेवलप करने के लिए क्रिटिकल लिटरेसी को, देन ये सब चीज़ें जो हैं उसमें प्रभावित कर सकती हैं। जैसे कॉन्टेक्स्ट क्या है, बैकग्राउंड, डिस्कर्सिव बैकग्राउंड क्या है ना। जब आप टेक्स्ट बोल रहे हैं, एक लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति दूसरे लैंग्वेज वाला है, तो जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल होता है, जो वर्ल्ड व्यू, आप कैसे संसार को देखते हैं, दूसरा व्यक्ति कैसे संसार को देखता है। आप जिस चीज़ को बड़ी बात समझते हैं, दूसरा उसको बहुत छोटी सी बात समझता है, बोलता है ये क्या है, छोटी सी बात है। फिर जो ट्रांसमिशन होता है उसमें गैप्स हैं, साइलेंसेस हैं। एजेंसी किस तरह की है, जो लिखने वाला वो मास्टर है या कि किसी का बात को आपके सामने रख रहा है ना। अगर कौन कहने वाले हैं या लिखने वाले हैं, फिर आप उसको कैसे समझते हैं, डिकोडिंग कैसे करते हैं, उसका हिडन मीनिंग क्या आप समझते हैं अपने दिमाग के अनुसार, ये सभी प्रभावित करते हैं क्रिटिकल लिटरेसी को।
देखिए क्रिटिकली लिटरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है इवन हमारे स्टूडेंट के लिए। देखिए यहाँ पर टीचर बोल रहे हैं कि मार्क्स हम नहीं देंगे, तो बच्चा बोला कि क्या गलत है इसमें, मैंने तो सब चीज़ एकदम पूरा इंटरनेट से कॉपी किया था एकदम सही सही, फिर क्यों नहीं मार्क्स मिलेगा। सो दिस इज देयर देन सर वही लेके जाना और कुछ नहीं लेके जाना है, बस इतना ही चीज़ है। और वो कुछ मिला होगा उससे तो आर्मी वाला से वाला लेके चले जाना है, ठीक है। So, how to develop critical literacy? Likes, dislikes, patterns, problem, puzzles, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप कोई भी चीज़ को है ना दोनों पक्ष अगर डिस्कशन करवाएं, डिबेट करवाएं, तो हम क्रिटिकल लिटरेसी डेवलप कर सकते हैं। क्वेश्चन करना है कि क्या लिखा हुआ है, किसके लिए लिखा हुआ है, किसका वॉइस इसमें इंक्लूड नहीं है। मतलब कि अभी एक कहानी मैंने वो जो आया था उसमें कहानी उसमें पढ़ा, तो उसमें एक बच्चा पूछता है कि इस कहानी में किसी लड़की का कैरेक्टर कोई क्यों नहीं है। मतलब कि सारे जेंट्स कैरेक्टर हैं उस कहानी में, तो कोई लड़की का कैरेक्टर क्यों नहीं है। तो इस तरह से भी सोचा जा सकता है। तो विच एस्पेक्ट्स ऑफ दिस वर्क रिफ्लेक्ट द लाइफ स्टाइल आई वांट, मतलब कि मैं जो चाहता हूँ उसका कौन सा पार्ट इससे फुलफिल होता है, इससे कौन सा मेरा ऑब्जेक्टिव लाइफ ऑब्जेक्टिव पूरा होता है। विद विच एस्पेक्ट्स ऑफ द परसीव्ड इंडोर्स्ड लाइफ स्टाइल डू आई डिसएग्री, और इसमें जो बात कही जा रही है कौन सा पार्ट जो है जिसे मैं डिसएग्री करता हूँ। जरूरी नहीं कि जो प्रपोजल मेरे सामने आया है सारा का सारा खराब हो मेरे लिए और सारा का सारा पूरा होली रिजेक्टेड हो जाए। फुल भी रिजेक्ट हो सकता है लेकिन पार्शियली भी एक्सेप्ट हो सकता है। तो वो पता होना चाहिए, पता करने का बच्चे में हम डेवलप कर सकें। जब कभी मान ली कोई नॉवेल पढ़ रहे हैं तो वाई डिड द ऑथर चूज दिस टॉपिक, इस तरह का क्वेश्चन हम मतलब क्वेश्चन का बहुत सारा क्वेश्चन, हाउ मेनी पर्सपेक्टिव्स आर ऑफर्ड इन द नॉवेल, ईच इक्वली कंपेलिंग, मतलब कौन कौन सा पर्सपेक्टिव है, किसका किसका पर्सपेक्टिव है उस नॉवल में दिया हुआ, क्या सब बराबर हैं। डज द ऑथर ट्राई टू मैनिपुलेट योर इमोशंस टू मेक ए पॉइंट, मतलब क्या है कि कोई कहानी हम पढ़ते हैं उससे हमारा इमोशंस को मैनिपुलेट, उस कहानी को पढ़ के हमारा इमोशंस बदल सकता है। तो क्या हमारा मैनिपुलेट करने का कोशिश हो रहा है क्या। तो हम कोई कहानी देखते हैं, कोई फिल्म देखते हैं, हमारा व्यू पॉइंट बदलता है, हमारा आइडिया बदलता है, हमारा थिंकिंग बदलता है। तो ये क्या है, ऑथर हैज मैनिपुलेटेड आवर इमोशंस। राइटिंग के थ्रू भी आप पॉलिटिकल कार्टून यूज करते हैं, म्यूजिकल लिरिक्स यूज करते हैं, मतलब स्कूल क्लास में रूम में हम तरह तरह का चीज़ यूज करते हैं, वीडियो यूज कर सकते हैं, सॉन्ग किसी टॉपिक पर कोई सॉन्ग बना सकते हैं। आजकल बोलते हैं सॉन्ग बना लीजिए। कोई सोशल स्टडीज हो, जैसे यहाँ पर एक जो है ट्रेवॉन मार्टिन केस दिया है। ट्रेवॉन मार्टिन केस एक्चुअली ये कोई बाहरी उसका चूँकि है विदेशी अमेरिकन है इसलिए वहाँ का केस का डिस्कस। हम लोग कोई जो ज्वलंत मुद्दा है उस पर कोई बहस करता है, इंग्लिश में ही पढ़ा रहे हैं या साइंस में पढ़ा रहे हैं, सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं, उसको कोई अगर हम करंट इशू से जोड़ करके उसमें डिबेट करवा सकें, कोई वीडियो दिखा सकें, कोई मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन दिखा सकें और बच्चे को इनिशिएट कर सकें सोचने के लिए, सोच करके उनको बोलने के लिए। एंड क्वेश्चनिंग स्किल, आवर क्वेश्चनिंग स्किल कैन सर्व दिस पर्पस। तो बहुत सारी चीज़ें हम बच्चे बोले सुने, है ना। अलाउ स्टूडेंट्स टू यूज देयर ओन राइटिंग, हमेशा क्वेश्चन में हम लिखते थे पहले, यूज योर ओन राइटिंग। स्टूडेंट को हम जो टेड वीडियोस जो टेड स्पीकर्स का वीडियो दिखा सकते हैं और उसमें जो स्पीच कहा गया है, जो बात कहा गया उसको हम दे सकते हैं कि एनालाइज द कंटेंट एंड हाउ विल यू रिस्पॉन्ड। अगर आपको बोला जाता है तो आप उनको क्या जवाब देंगे, अगर उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा तो क्या जवाब देंगे। ड्रग इशू है, ड्रग अब्यूज़, एडोलेसेंस एजुकेशन प्रोग्राम में डिस्कशन किया जा सकता है, पैनल डिस्कशन किया जा सकता है। कॉम्प्लेक्स इशूज़ है, कोई ऐसा इशू जिस पर कि बच्चे सोच करके कुछ बोल सकते हैं, उनको बोला जा सकता है, उनको सुनाया भी जा सकता है, कोई चीज़ वीडियो दिखाया जा सकता है, कोई किसी बड़े ऑथर का, किसी और बड़े स्पीकर का बात को सुनाया जा सकता है ताकि उनके अंदर सोचने की क्षमता बढ़े, वो सोचें। सो क्रिटिकल लिटरेसी पॉइंट्स टू प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स विद द कॉन्सेप्चुअल टूल्स नेसेसरी टू क्रिटिक एंड इंगेज सोसाइटी अलॉन्ग विद इनइक्वलिटीज एंड इनजस्टिसेस। मतलब समाज में बहुत असमता है, बहुत जो है ना इनजस्टिस है, वैसे में वो
अपने आप को उसमें सूट कर सके, उस अपने साथ उनके साथ सोसाइटी के साथ चल सके, इसके लिए उसके पास पॉइंट ऑफ व्यू हो, उसके पास एक क्षमता हो समझने की, सोचने की, रेस्पॉन्ड करने की, यह क्रिटिकल लिटरेसी करता है। तो बच्चे को हम अगर समाज के अपना उसमें अनुकूल बनाना चाहते हैं देन क्रिटिकल लिटरेसी इज इम्पॉर्टेंट। कोई क्रिटिकल लिटरेसी में क्या है कि ये समझाना पड़ेगा बच्चे को कि आपको पूछना है किसको, जो काम किया जा रहा है उससे किसको फ़ायदा है, किस तरह से फ़ायदा है, कौन सा इंटरेस्ट, कौन सा व्यू पॉइंट, कौन सा डिसमिस किया जा सकता है, कि किसी मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी को क्या उसमें स्थान दिया गया है, किसको नहीं दिया गया है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, क्या चेंज ला सकते हैं। सो क्रिटिकल लिटरेसी इज ए सेंट्रल थिंकिंग स्किल दैट एजुकेशन सीक्स टू डेवलप इन स्टूडेंट्स। हम लोग को स्टूडेंट में ये डेवलप करना है ताकि बच्चे जो हैं वो सिंथेसाइज कर सके, एनालाइज कर सके, इंटरप्रेट कर सके, इवैल्यूएट कर सकें, ताकि जो कुछ भी वो पढ़ें, सुने, देखें, उनके प्रति वो अच्छे से रेस्पॉन्ड कर सकें। तो डिफरेंट आइडियाज़ जो भी आपका कोर्स, हमारा जो कोर्स मटेरियल में है, जैसे भी हम कोर्स मटेरियल को डिलीवरी करते हैं उसके प्रति बच्चे जो हैं उसको एनालाइज कर सकें और इवैल्यूएट कर सकें। और इसको कैसे कर सकते हैं, तो हम पहले एक रिपोर्टिंग मटेरियल, मतलब हम कुछ पढ़ाएं जैसा, फिर बच्चे उसका रिस्पॉन्स करें, बच्चे प्रेजेंट करें। तो हम करते ही हैं, हम जब पढ़ाते हैं बच्चे का इवैल्यूएशन क्वेश्चन पेपर देकर एग्जामिनेशन कराते हैं, दूसरा तरफ प्रोजेक्ट दे करके कर सकते हैं। तो इसमें एक कुछ क्रिटिकल क्वेश्चन है, जब कभी बच्चे पढ़ें, लिखें, वीडियो देखें, मैगजीन पढ़ें, टीचर कुछ भी एक्टिविटी करा रहे हैं तो बच्चे नोट्स बनाएं, क्वेश्चन करें, तब क्रिटिकल जो है क्रिटिकल लिटरेसी डेवलप होगी बच्चों में। नेक्स्ट वी हैव फॉस्टरिंग क्रिएटिव लिटरेसी। सो इफ आई इनवाइट नाउ anyone of you if you want to say anything about critical literacy, और क्रिटिकल लिटरेसी के बारे में कुछ और बताएं, कुछ बोलना चाहें। मैं 2 मिनट चाहता हूं कि आप लोग में से कोई बोलें। What is critical literacy, how can we develop, what is the importance of critical literacy, why is it needed to be developed among the students, इसके बारे में कोई कुछ बोलें। दास सर कुछ बोलेंगे, कोई और बोलेंगे कुछ? एनीवन एल्स अबाउट क्रिटिकल लिटरेसी, एनीथिंग अबाउट क्रिटिकल लिटरेसी? Sir, I want to say yes. that if there is any topic, then there may be so many opinions. But we can divert the opinions in a positive direction so that it will be beneficial to all. Yes, sir. There may be so many opinions, but out of that, what is good for others, that may be taken up, I think. हाँ, जब हम ऐसा करेंगे देन स्टूडेंट विल बी ऑल्सो एबल टू थिंक, वो रिफ्लेक्ट करेंगे। और ऐसा जब एक बार करेंगे तो और दूसरे चीज़ों में भी, दूसरे जगहों में भी, हर जगह में, इवन बाज़ार में ख़रीदारी करते समय भी बच्चे फिर इस तरह का उनमें एबिलिटी डेवलप होगा और वो सोचना शुरू करेंगे। तो ये हम अपने क्लासरूम से शुरू कर सकते हैं जो कि सोसाइटी तक पर्कोलेट कर सकता है। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू टेक अप और नो अबाउट क्रिटिकल लिटरेसी और विल बी इक्विप्ड विद क्रिटिकल लिटरेसी। Anybody else? Anything to say?
Sir, I want to speak something in terms of critical literacy. Sir, Yes, sir. audible, Yes, sir? sir. Am I Yes, sir. audible, sir? Yes, sir. Am I audible, sir? Yes, sir. Critical literacy plays very significant role in every walk of our life. It is not necessarily literacy is plays a vital role during the examination period. No, it helps in every walk of our life, whether it is school, college, market, society, social, anywhere. So unless and until the students have critical decision power, they cannot take a right decision, right step. Critical literacy is very important nowadays, as nowadays the social setup is changing day by day. So according to that very point, critical literacy is most essential. It is very important. So it is our duty to inculcate literary is a critical literacy among the students, and students are the future. Students maybe is a big officer, a politician, this and that. So unless and until they have critical literacy, they cannot take right decision according to situation. So in that sense, sir, critical literacy is very important nowadays. Yes, sir. So now you see we have one more aspect, creative literacy. See, creativity is very important. All of us know creativity leads to innovations, new things are generated. Creativity means new things, generating new things, making new things, generating new ideas, etc. And if children are naturally curious minds, because they see, many times they will be asking questions, and those questions sometimes lead to new type of things. Means when students ask questions, teachers start adopting new methodology, new methods, new ways of explanation, and for that teachers use creativity. So teachers have creative literacy also. Teachers know that in every field, in every subject, in every idea, in every part of world, there is a scope of a new thing, new idea, new way. And that is because of creative literacy. We require to impart these, develop these in our children also. Creative literacy. So fostering creative literacy is also a very big part, big responsibility for a teacher. And in early childhood education, it is very much necessary. From class 1 to 5 in primary section, we need to nurture this curiosity and creativity of children, so that in coming years, children will be able to learn more and more things, develop new things. So creative literacy is a concept that goes beyond simple reading and writing and seeks to impart holistic learning through creative expression and activities, as well as visualization and creative thinking. You know, nowadays we are in the era of integrated education. We have to integrate art, we have to integrate visual arts, performing arts. Means in mathematics we are including dance. Using dance, we are teaching angles and patterns and other things. Using drawings, we are teaching science. Through some craft works, we are teaching social studies, culture, society, language, so many things. So we are integrating art and other things, creative expressions. Those creative expressions can become the part of classroom transaction if we inculcate creative literacy among children also. So in the world, everyone is creative and can be creative. Let us see one video.
Everyone can be creative whether they realize it or not. A lot of people tend to think that creativity is binary. Either you have it or you don't. But in reality, we do all have it. It's just a matter of how you interpret it. You know, some people think, I'm not an artist, so I don't use creativity at work. But it's more than just artistic expression. Whether you're working in retail, or you're in an office job, or even if you're a professional athlete, you're probably using creativity to make decisions and solve problems on a daily basis. Creativity is both a skill and a process. It's something you can learn. And like any other skill, it's something you can get better at through practice and repeated use. Now, you might think, well, I don't have time to sit down and create something every day. This is where it's important to realize the difference between using creativity and actually creating something. You know, in a lot of ways, creativity is all about how you see things. So yeah, you can use it to create poems or paintings, but you can also use it in practical ways, like coming up with an alternate solution for a work project or organizing things in your home. So the next time you think, I'm not creative, or I'm not as creative as some other people, take a step back and really take a look at what it is you do on a day-to-day basis. You might be surprised at how often you're using creativity. Goodwill Community Foundation. So actually everyone is creative, but what happens, most of us think that we are not creative. Creative people are different kind of people, and they are perhaps they have come from some kind of different type of planets. लेकिन अगर हम अपने रोज़ के जीवन को देखें तो हम खुद क्रिएटिव हैं और हर जगह क्रिएटिविटी यूज करते रहते हैं, क्रिएटिव लिटरेसी का यूज करते रहते हैं। जब कभी हमारे पास कोई प्रॉब्लम आता है, इफ़ वी हैव नो सॉल्यूशन, वी थिंक एंड अडॉप्ट सम न्यू थिंग्स, सम न्यू वेज to solve that problem. That is also creativity. So almost all the people in the world are creative, but many of the people, they don't think that they are creative. So हम लोग को सोचना पड़ेगा, अपने आप को सोचना पड़ेगा, अपने आप को, अपने जीवन को देखना पड़ेगा कि हम कैसे क्रिएटिव हैं एक्चुअली में। और उस क्रिएटिविटी को अगर हम ध्यान से देख करके अपने क्लासरूम में भी ले आएँ, क्लासरूम ट्रांजैक्शन में भी ले आएँ, देन वी विल हैव मल्टीपल वेज to be creative and to make our students creative literate. So it is a powerful tool to engage the children's imagination and creative expressions. Very powerful tool of learning, better understand. It can lead to better understanding. So if we make this creative literacy, if we bring this creative literacy in our classroom will be more vibrant, as well as our learners will be more active, and we will be able to serve the purpose which is being set by National Education Policy 2020. We will be able to carry out the competency based education. And how is creative literacy imparted? Art and drawing, literature and storytelling, animation and films, play, acting. So we can role play, we can adopt storytelling in brainstorming session, we can specify some literature. मान लीजिए कि कोई फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, टॉपिक हमने पढ़ा दिया, टॉपिक पढ़ाने के बाद आप जो बहुत अच्छा जानते हैं कि फलाना ऑथर का उससे बच्चा अच्छा मिल सकता है, उन बच्चों को दीजिए वहाँ पर कि ये वाला बुक आप पढ़िए, इस बुक में इस पेज से इस पेज तब नंबर तक पढ़िए और नोट्स में इंक्लूड कीजिए. योर चिल्ड्रन ऑल्सो विल बिकम मोर क्रिएटिव, they will start thinking new ways of responding, writing answers. लेकिन फिर जैसे शुरू में जैसे मैंने कहा था कि पीपल थिंक क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब क्रिएटिव लिटरेसी का मतलब क्रिएटिव थिंकिंग, लेकिन क्रिएटिव लिटरेसी इज मच मोर देन क्रिएटिव थिंकिंग. Similarly, critical literacy is much more broader aspect, broader concept than critical thinking.
मतलब कि हम क्रिटिकल लिटरेसी की बात कर रहे हैं। क्रिटिकल लिटरेसी बड़ी चीज़ है क्रिटिकल थिंकिंग से, और जो क्रिएटिव लिटरेसी है वो बड़ी चीज़ है क्रिएटिव थिंकिंग से। When we are creative literate, we adopt new ways to think, to react, to work, to do anything. तो अभी आप कोई क्रिएटिव लिटरेसी के बारे में, क्रिएटिव लिटरेसी कैसे डेवलप कर सकते हैं, इम्पॉर्टेंस ऑफ क्रिएटिव लिटरेसी, इनके बारे में कोई बोलिए, कुछ 1-2 मिनट कोई बोलिए क्रिएटिव लिटरेसी, और दोनों को कंबाइंड वे में, क्रिएटिव लिटरेसी एंड क्रिएटिव लिटरेसी, critical literacy and creative literacy. We are not talking about CCT, creative thinking and critical thinking. We are talking about creative literacy and critical literacy. So creative literacy क्या समझ में आ रहा है, क्या हम कैसे कर सकते हैं, how can we develop among the students and how it is important. So if anybody can speak, just please 2-3 minutes, please speak. Sir, so far as my opinion is concerned regarding critical literacy and creative writing, first and foremost, sir, we will create some situation in front of the students. We will provide some situation, some topic, some things to the students, and let them think what is their opinion, how they can think over this, over the topic, over the issue, whatever platform we have provided to the students. And if, according to our opinion, according to our thinking, students can take a right decision or wrong decision, whether they are developing creative writing or not, according to the perspective, according to the situation. If they are coming on the right way, then I think they are creating, they are increasing, developing creative writing concerning the literary thinking. So far as I know this much, sir, creative writing. Anybody First and else? foremost, Yes, sir. Sir. first and foremost, we have to provide, we have to give some platform before the students, so that whether they can go on right direction or wrong direction. Ultimately, suppose students cannot take a right decision, right creative writing, again we have to analyze, again we have to make them understand this is not the correct way, this is the correct way. So in this way, sir, we can inculcate, we can impose the creative writing in the mind of the students. This much, sir. Thank you, sir. So now we should let us see some comparative view of creative thinking and critical thinking, so that we can have some more understanding about creative literacy and critical literacy. So creative thinking and critical thinking, when we see, with creative thinking you can find wrong questions. देखिए आंसर की बात नहीं हो रही है. With creative thinking you can find wrong questions. With critical thinking you can find wrong answers. Means somebody is giving solutions and you can judge that solution. You can find out whether it is correct or wrong. You can find out whether it will suit you or not suit you. That is critical thinking. But creative thinking, we can question the question here. When you think creatively, you are exploring many new ideas. When you are thinking critically, you are making choices. Creative thinking tries to create something new. On the other hand, critical thinking seeks to measure worth or validity in something that already exists. Means nothing new is being created. You are accepting, you are
choosing from the existing ones. Now, creative thinking is non-judgmental. Critical thinking is judgmental, means you are passing judgment. Creative thinking is expansive, it expands, it incorporates more ideas. Critical thinking is selective, means already ideas are there, you are going to select which idea is suitable the most. Creative thinking is generative, divergent and subjective in nature, means nobody can clear-cut pinpoint that yes, this is the most suitable. Critical thinking analytic, it is analysis is done, convergent and objective in nature, only one will be the most suitable and you can 100% be sure that yes, this option is correct or this solution is correct, this way is correct, this is the method by which we should work. Creative thinking is carried on by contravening established practices, means already established practices, traditions are broken in creative thinking. Creative thinking is carried on by applying established practices, means we apply the traditions, whatever is old that is being followed. Creative thinking is going past the limitations, thinking out of the box and being novel and fresh in one's ideas. Critical thinking, on the other hand, is more evaluative in nature and analyzes a particular existing thing. Creative thinking talks about possibilities, critical thinking talks about probabilities. So this is the thing which I wanted to say. So we have discussed about fostering critical literacy and creative literacy. Both are important. You know, creative literacy is important to impart innovative viewpoint to our children, and then in future they will be able to innovate and generate new ideas, generate new things, innovate as well as you can invent new things. And critical, they will be a good person, good balanced person, and they will be judgmental as well as non-judgmental, means for a balanced personality, holistic development of children, we require both critical literacy as well as creative literacy. Both are important, equally important, and the duty of the teachers is to inculcate both creative and critical literacy among the children. And there are so many ways we are already doing, we have to keep it on doing, but our approach should be a little bit different from earlier approaches. We should be more, our classroom transaction should be more student centered, learner centered and more active learner. And we will have to use different tools, we will have to use different activities, different types, means we should also use our creativity more and more for fostering critical literacy and creative literacy among our students. Alright, then thank you. I will share the attendance and feedback form in the WhatsApp group. All who are attending should fill in half an hour. So thank you very much. Now you can leave. Sir, please 1 minute, sir. Yes, sir. Sir, I feel honored and privileged to propose a vote of thanks. My dear colleagues, today is critical literary and creative writing. Our honorable principal, sir, resource person, has delivered his very fruitful lecture over the topic critical literacy and creative writing. So, sir, we have learned a lot of things from your lecture, and definitely, sir, it will be implemented, it will be applied in our life for the benefit of the students. Sir, it is very, very beneficial, sir. We have learned a lot of things from your lecture. Thank you. Many thanks, sir, for your lecture. Thank you, everybody. Thank you to all of you. Now you can leave.